Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where this is going to be your last part of Theory of Income Employment series, and we are going to complete chapter 12. Post that, we'll move on to chapter 13, that is money, and so on, banking वगैरह वगैरह start करेगा. So in my last video, we had completed investment multiplier. बस अब एक last topic बाकी है आपका, rather 3 more topics. The concept of full employment, excess demand and deficient demand. इसको complete करते ही our chapter will be wrapped up. So without much ado, let's get started. ठीक है? So in this video, we are going to start with the concept of full employment. Now, I have already written the things over here to save some time on my video. I know it gets a little longer. So आइए समझते क्या होता है full employment. Now आपने क्लास 11 में फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर जब हमने किया था वहीं पे हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट भी बनाया था. सिंपल सादा भाषा में अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बताऊं तो फुल एम्प्लॉयमेंट मींस कि आपके तीनों टाइप के रिसोर्सेज, दैट इज नेचुरल, मैनमेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. आई रिपीट अगेन, नेचुरल, मैनमेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जब सारे के सारे fully utilized है, then we say that full employment has been achieved. The concept of full employment applies to the developed countries, those countries who have extracted their entire resources and they have utilized their entire resources to its fullest potential. So full employment का मतलब देखिए मैंने क्या लिखा है. Full employment refers to a situation when all those able bodied person. Now जब मैं बोल रहा हूं able bodied person, what do I mean by able bodied person? able bodied person यानी कि able bodied person का मतलब हो गया all those who come under the age of 15 to 60 years. यानी कि हमारा ये लेबर फोर्स है. Below 15 is child labor and above 60 is retirement. So वो सारे लोग जो कि एज ग्रुप ऑफ 15 to 60 years के अंदर में आते हैं, they are regarded as able bodied person. And all those able bodied person, हर वो इंसान जो काम कर सकता है, who are willing to work. Now why this word willing is important, I'll come to that नीचे जब explain कर रहे होंगे, ठीक है. Those who are willing to work at a prevailing wage rate. Now what is the meaning of word prevailing? प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, ठीक है. एग्जिस्टिंग यानी जो भी उन्हें वेज रेट मिल रहा हो वो लोग उसमें काम करने को तैयार है. दैट इज प्रिवेलिंग. एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट दे आर गेटिंग वर्क, उन्हें काम मिल भी रहा है एंड दे आर इवन एम्प्लॉयड, उनके पास काम है भी. सो फुल एम्प्लॉयमेंट सिंपल भाषा में व्हेन योर फिजिकल, योर नेचुरल, योर मैनमेड एंड योर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल आर कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, we say full employment prevails. Yani all those people who are willing to work at a prevailing wage rate, they are getting work. In fact, they are employed as well. But then two things to be noted about full employment concept, which is, does full employment mean that there will be zero unemployment? कि क्या एकदम भी unemployment नहीं होगा? The answer is no. Full employment does not mean that there is zero unemployment. At any given point of time, even if full employment potential exists, still there would be some people who would be willingly not to work. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो होता है वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. वॉल्यूंटरी मीन्स दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड बाय देयर चॉइस, ठीक है. दोज पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड बाय देयर चॉइस. So, जब भी full employment potential बनाया जाएगा, there would be some people who would be unemployed by their own choice, and that kind of unemployment is regarded as voluntary unemployment. ठीक है. Voluntary unemployment means, voluntary का मतलब होता है by choice, अपने इच्छा से. So there could be some people who would be unemployed by their choice, like for example, idle, rich, अमीर बाप के बिगड़े औलाद जो होते हैं, आइडल रिच, कि उन्हें काम दिया जाए तो भी वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है इसीलिए. देन वी हैव आइडल पुअर. नाउ पुअर पीपल हु आर यूज्ड टू बेगिंग, इवन अगर आप उनको प्रोडक्टिव काम दोगे स्टिल वो लोग काम नहीं करना चाहेगा. देन वी हैव थीव्स, देन वी हैव पिक पॉकेट्स,
Then we have smugglers, we have gamblers, we have traffickers. These are some category of people who would remain unemployed by their own choice. यानी उनको अगर प्रोडक्टिव काम दिया भी जाए तो भी वो लोग काम नहीं करेंगे. सो फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट बनाते वक्त वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है. It does not affect the concept of full employment. ठीक है. And also the data of the developed country says that 3 to 4% at any given time when we are making the concept of full employment, 3 to 4% of frictional unemployment. Now what is the meaning of frictional unemployment? Frictional unemployment का मतलब होता है temporary unemployment. ठीक है. Temporary unemployment does exist. Some people might be leaving jobs and they might take time to find another job. So the duration between the time when they leave a job until the time they find another job, they will be temporary unemployed. और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तभी भी अराइज होता है जब देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द लेबर्स विच आर रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी. कि हो सकता है एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए लेबर से लेकिन उनके पास है नहीं वो अभी, तो उनको वो स्किल सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एंड तब तक के लिए दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड. सो दैट इज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. सो डेवलप्ड इकोनॉमी बोलता है कि 3 से 4% ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज नेचुरल, इट्स नॉर्मल, इट डज एग्जिस्ट करता है. अगर 3 या 4% से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, इफ द डेटा एक्सीड्स 3 to 4%, तब हम लोग बोलते हैं कि along with frictional unemployment there is some amount of involuntary unemployment as well. Now involuntary unemployment क्या होता है? There would be some people who would be willing to work at the prevailing wage rate but they are not getting any work to do. काम करना चाहते लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है. And then we say कि अगर involuntary unemployment है तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं हो पाया है इकोनॉमी के अंदर में. आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डायग्राम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सिंपल ग्राफ है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है कि कैसे बनाना है, तो मैं आपको बस दिखा देता हूं. यहां एक्स एक्सिस में आ जाएगा आपका इनकम, यहां वाई एक्सिस में आ जाएगा आपका डिजायर्ड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं, इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा एग्जाम में. ठीक है, चलो लेट्स मेक एग्रीगेट सप्लाई. वी नो एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन which is equal to y which is equal to 1 and which is my aggregate supply as well. and हमने aggregate demand already बना चुके हैं, हम लोग जानते हैं कैसा दिखता है aggregate demand. This is how your aggregate demand looks like, right? AD which is equal to C plus I. ये आ जाएगा अपना point of equilibrium, right? ये आ जाएगा अपना point of equilibrium, ये हो जाएगा equilibrium level of income. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे जैसे जहां पे AD इज इक्वल टू AS वहां ब्रैकेट में लिख देना यही है फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, दिस इज व्हाट माय फुल एम्प्लॉयमेंट इज. तो ये एक हाइपोथेटिकल हम लोग सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे इंटरसेक्ट कर जाए तो इकोनॉमी वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट में प्रिवेल करेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ अमाउंट मैं लिख लेता हूं 10,000 CR. सो मैंने मान लिया कि इकोनॉमी का अगर एग्रीगेट डिमांड का साइज 10,000 CR हो जाए एंड एग्रीगेट सप्लाई भी 10,000 CR हो तो इकोनॉमी को हम लोग मान लेंगे कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया है. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप. अब देखिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ ही इंटरकनेक्टेड है. एक्सेस डिमांड क्या होगा कि मान लीजिए अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया, इफ इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, बट जो एग्रीगेट डिमांड का साइज है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से ज्यादा बड़ा आया. सपोजिटली मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होगा एट 10,000 करोड़, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो आया वो 15,000 करोड़ का आया. तो क्या इकोनॉमी के पास एडिशनल 5,000 करोड़ का रिसोर्सेज अवेलेबल है? क्या वो सप्लाई बढ़ा के दे पाएगा? द आंसर इज नो.
क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन होने का मतलब ही ये है कि सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए हैं एंड डिमांड अगर उससे ज्यादा आता है इकोनॉमी में देन इट विल लीड टू एक्सेस डिमांड, excess of aggregate demand over aggregate supply. There will lead to shortage of inventories in the economy. Goods मत बोलिएगा, shortage of inventories. मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, माइक्रो नहीं, ठीक है। गुड्स इज मार्केट के साथ एसोसिएटेड, इकोनॉमी के लिए आप इन्वेंट्री यूज करोगे। सो देयर वुड बी अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री इन द इकोनॉमी एंड ड्यू टू दैट शॉर्टेज इकोनॉमी में उन इन्वेंट्रीज का प्राइसेस विल स्टार्ट टू इंक्रीज एंड प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा या महंगाई आ जाएगा। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप? सी आई हैव रिटन द अमाउंट, इट इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमने क्या लिया एग्जांपल के तौर पे, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आया 15,000 CR exceeds the aggregate output. Now aggregate output corresponding to full employment पे aggregate output कितना इकोनॉमी दे सकता है? 10,000 CR, right? So अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड 15,000 CR आया एंड एग्रीगेट आउटपुट का पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारे इकोनॉमी में 10,000 CR है, सो देयर इज अ गैप, माइनस करेगा, देयर इज अ गैप ऑफ 5,000 CR एंड दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड। यही है हमारा एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी एंड ड्यू टू दैट एक्सेस डिमांड there will be a rise in the prices of inventories in the economy which will push up the price and that will lead to inflation. That has a potential of inflation in the economy. I hope that is clear. इसका भी ग्राफ हमें बनाना होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले we'll make the quadrant, y axis origin, x axis यहां ले लूंगा मैं इनकम, यहां ले लूंगा मैं डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। चलिए एग्रीगेट सप्लाई को बनाते हैं। ये बनेगा मेरा एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन y विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड, दिस विल बी माय एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू C प्लस I और यहां मैं लिख लूंगा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि मान लेते हैं मेरा इकोनॉमी यहां फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये आ जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, सपोजिडली, एंड ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y0। मैंने क्या बोला? सपोजिडली अगर हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाए फुल एम्प्लॉयमेंट से, सो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड अगर समवेयर यहां पे हो, ठीक है, इफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स AD1, ठीक है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। सो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड अगर एक्सीड कर जाए फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को, तो क्या यहां पे इस पॉइंट पे नया इक्विलिब्रियम आएगा? क्या आप यहां पे E1 लिख सकते हो? जी नहीं, आप नहीं लिख सकते हो। बी वेरी कॉशियस ऑफ दैट। You cannot mark this as your new equilibrium क्योंकि full employment already achieve हो चुका है। यहाँ पे resources are fully utilized. So उससे ज्यादा अगर aggregate demand exceed करता है तो नया equilibrium नहीं attain होगा क्योंकि economy के पास उतने resources ही नहीं available है। rather जितने amount से aggregate demand ऊपर गया होगा, जितने अमाउंट से एग्रीगेट डिमांड ऊपर गया होगा, यहां से लेके यहां तक जितने अमाउंट से एग्रीगेट डिमांड ऊपर गया होगा, ये आपको गैप दे देगा आपका, एंड दिस गैप विल रिप्रेजेंट योर एक्सेस डिमांड। आई विल नेम इट समथिंग, ई से लेके ए तक एक्सेस डिमांड, and due to this excess demand the prices of the inventories will push up in the economy and therefore this gap is called as inflationary gap क्योंकि it has a potential of bringing in inflation into the economy, that is why it is regarded as inflationary gap. I hope that is clear, आपको समझ में आ गया हो। now इस inflationary gap यानी inflation को tackle करने के भी measures है, ठीक है, measures to wipe out inflation। inflation को भी wipe out करने के कुछ measures है।
कौन कौन से मेजर्स है? मॉनेटरी measure, monetary measures which are associated with banking. ठीक है, monetary measures are always associated with banking policy. And दूसरा है fiscal measure. Fiscal measure is basically associated with, it is associated with public यानी सरकार का फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस यानी इसमें तीन चीज आएंगे: पब्लिक रेवेन्यू यानी टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा, एंड पब्लिक डेट, गवर्नमेंट जो लोन लेता है. ठीक है, पब्लिक डेट. मॉनेटरी मेजर एक्चुअली जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वहां पे बताया गया है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे बैंक्स या आरबीआई बेसिकली क्या बोलता है कमर्शियल बैंक को करने के लिए, जिससे कि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके. इसमें बेसिकली हमारे पास चार मेन तरीका है. वन इज कॉल्ड एज बैंक रेट पॉलिसी. वन वी हैव ओपन मार्केट operation. One is your CRR, cash reserve ratio, and one is your SLR, statutory liquidity ratio. Now basically इन सारे measures के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा. मॉनेटरी मेजर्स जिस दिन हम लोग बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करना है. एंड जब फिस्कल पॉलिसी बोल के आपका एक चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेट के केस में सरकार क्या करेगा इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए. सो ऑल द थिंग्स गेट इंटरकनेक्टेड. मैं आपको ऑलरेडी अभी यहां पे पढ़ा दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. पहले आप ये जानो तो सही कि बैंक रेट है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, सीआरआर है क्या, एसएलआर है क्या. उसके बाद आपको समझ आएगा कि उसको कब बढ़ाया जाता है और कब घटाया जाता है, एंड कौन से सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाता है. ठीक है, हाँ एक बार के लिए मैं फिर भी आपको फिस्कल पॉलिसी का मेजर्स अभी यहां पे बता सकता हूं. इन्फ्लेशन का कारण होता है इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, कि बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है, लोग के पास पैसा है खर्चा करने को, लेकिन उतना गुड्स एंड सर्विसेज है नहीं. तो बोल के एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस जो है बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन लेके आता है. सो गवर्नमेंट उस टाइम पे पब्लिक रेवेन्यू के अंदर में आएगा आपका टैक्स. गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए कि टैक्सेस को बढ़ा दीजिए. द मोमेंट आप टैक्सेस बढ़ा दोगे तो पब्लिक के हाथ से पैसा स्नैच हो जाएगा, आप खींच लोगे पैसा उनके हाथ से. सो देयर परचेजिंग पावर विल रिड्यूस एंड सो विल देयर डिमांड. ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगा एंड इन्फ्लेशन वाइप आउट हो जाएगा. दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर. इफ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में किया था AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, राइट. ओपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में हमने C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M किया था. तो ये G यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये भी तो एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का. सो इन्फ्लेशन के टाइम पे इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे, कम कर दे, ताकि एग्रीगेट डिमांड भी कम हो सके, इट कैन कम डाउन एंड इन्फ्लेशन कैन बी टैकल्ड. ठीक है. एंड पब्लिक डेट के केस में, पब्लिक डेट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब बाहर के लोगों से लोन्स लेता है तो उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट जो पब्लिक है यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर में जो लोग हैं उनसे लोन्स ले, सरकार उनसे लोन ले ताकि उनके हाथ में पैसा ना बचे. सो एट दैट टाइम इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना पब्लिक डेट को इंक्रीज कर दे. इट स्नैचेस अवे द मनी फ्रॉम द पीपल्स हैंड so that they are not in a position to spend that money and automatically inflation can be controlled, can be tackled. तो ये हो गया आपका फिस्कल मेजर्स. लेकिन मॉनेटरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेगा बैंकिंग चैप्टर में. ठीक है, मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूं. सो आई होप दैट इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते लास्ट टॉपिक के टुवर्ड्स. वी हैव डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप. नाउ इन्फ्लेशनरी गैप का ऑपोजिट बन जाएगा डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड का ऑपोजिट बन जाएगा डेफिशिएंट डिमांड. नाउ व्हाट इज डेफिशिएंट? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेफिशिएंसी. आपने जूनियर क्लासेस में डेफिशिएंसी डिजीजेस किया होगा, राइट, व्हिच अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स. विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है. सो डेफिशिएंट डिमांड बोलता है कि अगर जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है
वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पोटेंशियल से कम हो। सो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पोटेंशियल हमने क्या एग्जांपल लिया था, सपोजली 10,000 करोड़ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, एंड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड 10,000 करोड़ से अगर कम आए, 7,000 करोड़ का एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आया, तो क्या हो जाएगा, 3,000 करोड़ का एक्सेस सप्लाई है हमारे पास, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, डिमांड उतना है नहीं, तो उन 3,000 करोड़ का लेफ्ट ओवर रिसोर्सेज का प्राइसेस, उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। कोई भी चीज जब बिकता नहीं है तो आपने मार्केट में क्या सीखा है, एक्सेस सप्लाई होता है, उससे सरप्लस होता है, सरप्लस की वजह से जब कोई चीज अनसोल्ड रह जाता है, देन द प्राइसेस आर टू बी रिड्यूस। सो प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, एंड प्राइसेस कम करेंगे तो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ डिफ्लेशन या रिसेशन, वो इकोनॉमी में मंदी लेके आ सकता है। सो देखिए मैंने क्या लिखा है, डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड विल बी द अमाउंट बाय विच, it is the amount by which actual aggregate demand, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, इट फॉल्स शॉर्ट, कि वो कम है। लाइक हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमने कितना लिया, 7,000 करोड़, लेकिन एग्रीगेट आउटपुट कितना है, 10,000 करोड़, ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट कितना है, 10,000 करोड़। सो फुल एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से कम अगर डिमांड क्रिएट हो तो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ डिफ्लेशन, एंड दैट इज रिगार्डेड एज डेफिशिएंट डिमांड। सो आइए डेफिशिएंट डिमांड के केस में होगा क्या, ग्राफ बनाते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड। y axis origin, x axis income, desired aggregate demand and aggregate supply, ठीक है। So we'll start first by making aggregate supply. This is my aggregate supply which is equal to y at a 45-degree line. Here I have my, थोड़ा और ऊपर बनाता हूं, here I have my aggregate demand AD which is equal to C plus I. यहां मैं ब्रैकेट में लिखूंगा फुल एम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमी, यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है, इसको लिखना मत भूलिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट मार्क करना अगर आप भूल गए तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल, एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट y0, ठीक है। नाउ डेफिशिएंट डिमांड के लिए बोलता है इफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट, तो सपोजेडली एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड अगर इतना आए, ठीक है, राइट, मान लीजिए अगर इतना आया 81, दिस इज माय एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। सो इफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट आउटपुट, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या यहां नया इक्विलिब्रियम आ सकता है E1? आप बोलोगे डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है एंड कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज यूज हो गए, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे तो इक्विलिब्रियम आ सकता है, हालांकि वो कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इट विल बी रिगार्डेड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सम रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। सो इस लेवल ऑफ इनकम पे कुछ रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर ये जो गैप आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट से लेके यहां तक का, ये वाला जो गैप आ रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं बी, ई से लेके बी, यही कहलाएगा आपका डेफिशिएंट demand, and this gap itself E to B will be regarded as deflationary gap, ठीक है, this will be regarded as your deflationary gap कि actual aggregate demand इतना से कम है। Now talking about measures to correct deflation, इसमें भी monetary measures है जो कि हम लोग बैंकिंग में डिस्कस करेंगे, एंड इसके भी फिस्कल मेजर्स है। फिस्कल मेजर्स में टैक्सेशन, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो टैक्सेशन को कम कर दे डिफ्लेशन के टाइम पे, ताकि लोग के हाथ में ज्यादा पैसा बचे,
and they can spend more. The moment they'll start spending more, aggregate demand अपने आप बड़ा हो जाएगा size, क्योंकि aggregate demand is falling short ना, so aggregate demand को increase करना है, so taxation को reduce करना पड़ता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे. डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट शुड अंडरटेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल सो दैट इट कैन इंक्रीज द साइज ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. ठीक है. इसके अलावा पब्लिक डेट कम कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को कम लोन्स लेना चाहिए लोगों से, ताकि लोग के हाथ में पैसा बचे. दे स्टार्ट स्पेंडिंग दैट अमाउंट एंड ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो जाए. सो दिस इज योर मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप. मॉनेटरी मेजर्स हम लोग बैंकिंग वाला चैप्टर में कवर अप कर लेगा, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, बस इतना ही था. आई होप आपको समझ में आ गया है एंड यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट. एंड इफ यू आर, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep studying, take care. Bye bye.